নমস্কাৰ, মই পংকজ উপাধ্যায়, নেঘেটিং উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ সহকাৰী শিক্ষক। বিভিন্ন কম্পিটিটিভ এক্সামত বা প্ৰস্তুতিৰ বাবে গোলাঘাট জিলাৰ বিদ্যালয়সমূহৰ পৰিদৰ্শকৰ কাৰ্যালয় আৰু জিলা ক্ৰীড়া বিষয়া কাৰ্যালয়ে যুটীয়াভাৱে আয়োজন কৰা বিনামূলীয়া অনলাইন পাঠ্যক্ৰমলৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। ইতিমধ্যে আমি অনলাইন যোগে জেনেৰেল নলেজ, কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্স, ৰিজনিং, ইতিহাস, ভূগোল, ৰাজনীতি বিজ্ঞান, কম্পিউটাৰ, ইংৰাজী ভাষাৰ সম্পৰ্কে কিছু সাম্যক ধাৰণা আগবঢ়াই আছোঁ। আজি মই SSC, BSF, আৰ্মি, এয়াৰফ'ৰ্চ, নেভি আৰু অন্যান্য পাৰামিলিটাৰী ফ'ৰ্চৰ লগতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাসমূহত ইংৰাজী ভাষাৰ লগতে হিন্দী ভাষাৰ প্ৰশ্ন অহা দেখা গৈছে। গতিকে এই হিন্দী ভাষাৰ কিছু প্ৰশ্ন বা হিন্দী ভাষা আমাৰ বিভিন্ন চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ অফিচসমূহত বহুতো পোষ্ট থাকে, ভেকেঞ্চি থাকে। গতিকে সেই ভেকেঞ্চিৰ কাৰণে কি হয়, বিভিন্ন ধৰি লওক ষ্টাফ ছিলেকশ্যন কমিশ্যনত মাল্টিটাস্কিং ষ্টাফ, গ্ৰেজুৱেট লেভেল, মেট্ৰিক লেভেল বা হাই ছেকেণ্ডেৰী লেভেলৰ বিভিন্ন পৰীক্ষা হয়। সেই পৰীক্ষাসমূহত হিন্দী ভাষাৰ এটা প্ৰশ্নও থাকে। সেই প্ৰশ্নটোত যেনেকৈ ইংৰাজীত 25 মাৰ্ক থাকে, তেনেধৰণে হিন্দীতো 25 মাৰ্কৰ প্ৰশ্ন দিয়া থাকে। গতিকে আপোনালোকৰ সুবিধাৰ কাৰণে হিন্দী ভাষা আৰু আমাৰ ব্যাকৰণৰ কিছু প্ৰশ্নৰ লগতে হিন্দী ভাষা বা হিন্দী আমাৰ কাৰণে কিমান উপযোগী বা হিন্দী বিষয় লৈ আমি কেনেকৈ এই কম্পিটিটিভ পৰীক্ষাসমূহ পাছ কৰিব পাৰি তাৰ বিষয়ে চমু আভাস দিবলৈ মই চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু লগতে কিছু সম্ভাৱ্য প্ৰশ্ন ষ্টাফ ছিলেকশ্যন কমিশ্যন হওক বা BSFৰ হওক, বৰ্ডাৰ ছিকিউৰিটি ফ'ৰ্চৰ পৰীক্ষা হওক বা পেৰামিলিটাৰী ফ'ৰ্চৰ পৰীক্ষা হওক, সেই পৰীক্ষাসমূহত অহা কিছু প্ৰশ্ন মই বাছি উলিয়াইছোঁ, ইয়াত দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এতিয়া প্ৰথমে কথা হ'ল হিন্দী ভাষা আৰু আমি। হিন্দী ভাষাক আমি অকল আমাৰ এইটো ভাবিব নালাগে যে ভাৰততে হিন্দী ভাষাৰ প্ৰচাৰ হৈ আছে, দেশ বিদেশতো হিন্দী ভাষাৰ বহুত ধৰণৰ চাকৰি ওলাই থাকে। যেনেকৈ BBC হিন্দী, চাইনা ইণ্ডিয়া ৰেডিঅ' আদিতো আমাৰ বিভিন্ন ভেকেঞ্চি থকা আমি দেখিব পাইছোঁ। লগতে আজি কি হয়, হিন্দী বিশ্বৰ সকলো ঠাইতে হিন্দীত লিখা হওক বা পঢ়া হওক এনেধৰণৰ ব্যৱস্থা देखा जाए। और आज यहाँ लिखा हुआ है, दुनिया भर में बोली जाने वाली सभी भाषाओं में हिंदी तीसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। वर्ल्ड लैंग्वेज डेटाबेस के 22वें संस्करण इथोनोलॉज में बताया गया है कि दुनिया भर की 20 सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में 6 भारतीय भाषा है और जिसमें हिंदी तीसरे स्थान पर है। गतिके এই तथ्यर पर हमें गम पाओ जे हिंदी भाषा किमान महत्व। और उसके बाद देखिए, हिंदी में भी हम करियर बनाने में एक से बढ़कर एक सुनहरे मौके हैं, क्योंकि हमारे हिंदी क्या है, अपने देश की राजभाषा है। आज के दौर में रोजगार के अवसरों में कमी नहीं, इसमें आप अपनी प्रतिभा के द्वारा या शैक्षिक योग्यता बढ़ाकर बेहतरीन करियर संवार सकते हैं। हिंदी में भी करियर बनाने के एक से बढ़कर एक सुनहरे मौके हैं। यह मैं आप सबको बता रहा हूँ कैसे और किस तरह से हम हिंदी को लेकर आगे बढ़ सकते हैं। हिंदी अपने देश की राजभाषा तो है ही, और आज के दौर में रोजगार के लिए भी बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, हिंदी क्या है हमारे लिए, हमारे देश की संपर्क भाषा है, लिंक लैंग्वेज है। जैसे कि हम असम में रहते हैं तो हमारी जो मातृभाषा है वह असमी है। অসমীয়া যেহেতু আমি অসমীয়াত কথা পাতোঁ, আমাৰ মাতৃভাষা অসমীয়া, কিন্তু অসমীয়াৰ লগতে আমি হিন্দী বা বিভিন্ন ভাষা যদি শিকোঁ তেতিয়া কি হয়, অসমৰ বাহিৰত ধৰি লওক দিল্লী হওক, ৰাজস্থান হওক, উত্তৰ প্ৰদেশ হওক, তাত বিভিন্ন পৰীক্ষা থাকে। যেনেকৈ LICৰ পৰীক্ষা, কিছুমান পৰীক্ষাত LIC AO, হিন্দী অফিচাৰ, ৰাজভাষা অধিকাৰী, হিন্দী টাইপিষ্ট, হিন্দী ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ আদিৰ পৰীক্ষাসমূহৰ কাৰণে
হিন্দী ভাষা জনাটো অতি জৰুৰী হয়। সেইকাৰণে আমি হিন্দী শিকিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে। आइए जानते हैं हिंदी भाषा का महत्व। বেংকত, যিকোনো বেংকত, চৰকাৰী বেংকত, ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়া হওক, ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়া হওক, তাত হিন্দী অধিকাৰী বুলি হিন্দীৰ পোষ্ট থাকে। আৰু বিভিন্ন কাৰ্যালয়ত, ধৰি লওক ফুড কৰ্পৰেশ্যন অফ ইণ্ডিয়া, লগতে অসমৰ যেনেকৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰ বোৰ্ড, বিভিন্ন চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ কাৰ্যালয় সকলোতে হিন্দীৰ ভেকেঞ্চি থাকে। গতিকে আমি হিন্দী শিকি সেইবিলাক ভেকেঞ্চি ল'ব পাৰোঁ জব। হিন্দী সহজে শিকোৱাক। আমাৰ এটা ভ্ৰান্ত ধাৰণা আছে যে হিন্দী অতি কঠিন বিষয়, হিন্দী ব্যাকৰণৰ বহুতো ভুল হয়, এনেধৰণৰ আমি কথা কওঁ, সেইটো নহয়। সেইকাৰণে হিন্দীত আমি প্ৰথমে নাউন, সংজ্ঞা, প্ৰনাউন, সৰ্বনাম, এনেধৰণে সংজ্ঞা, সৰ্বনাম, বিশেষণ, ক্ৰিয়া বিশেষণ ইয়াৰ বিষয়ে আমি জানিব লাগিব। লগতে लिंग, वचन, कारक, समास आदि के बारे में भी हमें जानना ज़रूरी है। और उससे ज़रूरी है हमें शब्द सीखने की, जो शब्द हैं वह सीखने का बहुत ही ज़रूरी है। आप यहाँ पर शब्द देख सकते हैं, सही शब्द का चयन कीजिए। एसएससी परीक्षा देने का दिया था कि या 1 নম্বৰত লিখা আছে, 3টা দিয়া আছে, 3টাৰ ভিতৰত কোনটো শুদ্ধ বাছি উলিয়াব লাগে। ইয়াত 1 নম্বৰ এই প্ৰথমটো শুদ্ধ উত্তৰ হয়। তাৰপাছত তেনেকৈ আমি দ্বিতীয়টো বিচাৰিব লাগিব। দ্বিতীয়টো কোনটো হয় সেইটো বিচাৰি উলিয়াব লাগিব। পাঠ্যক্ৰম আৰু পাঠ্যক্ৰম বুলি দি আছে। পাঠ্যক্ৰম নহয়, এই 3 নম্বৰ, এই শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব এই 3 নম্বৰটো। 3 নম্বৰ এই মাজৰটো পাঠ্যক্ৰম, এই শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব। আপোনালোকে মন দিব। তাৰপিছত तिथि, इसमें एक में छोटी है, एक में दोनों छोटी है और एक में दोनों बड़ी है। तो ये जो दोनों छोटी है वह बिल्कुल सही उत्तर होगा। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर तिथि जो है, ये जो बीच में है यह बिल्कुल सही उत्तर है, तिथि। इस प्रकार से आप इसमें देखिए 4 नंबर में सारे नंबर सब नवंबर, नवंबर। तो चौथा 4 में देखिए पहला वाला ही हमें यहाँ सही लग रहा है, क्योंकि नवंबर वह के ऊपर में चंद्र बिंदु है। ये देखिए ये नवंबर बिल्कुल सही है, सही उत्तर। नवंबर को हम सही मान सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट में हम जाते हैं शनिवार, शनिवार। तो शनिवार गलत है, शनि में बड़ी ई होने से भी गलत है। तो ये तीसरा वाला जो है ये जो शनिवार है यह सही है। तीसरा वाला शनिवार आपको यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं ये जो शनिवार है यह बिल्कुल सही है। उसी प्रकार से धन्यवाद और धन्यवार, छोटी छोटी गलती हैं। ट्रिकी क्वेश्चन दिया था कि सहज प्रश्न ये धन्यवाद शुद्ध उत्तर। তেনেকৈ আকৌ कवयित्री, तो प्रथमটো शुद्ध उत्तर होगा। पहले वाला जो है यह बिल्कुल सही उत्तर आप लोग के सामने में दिखाई दे रहा है। 7वां उत्तर, 7 नंबर वाला जो उत्तर है ये है आपके सामने में, कवयित्री बिल्कुल सही उत्तर है। उसके बाद 8 नंबर में हम जाते हैं परीक्षा। तो इसमें से जो सही उत्तर है वो आपके सामने है, मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। ये देख सकते हैं ये बॉक्स में जो है ये वाला जो परीक्षा है ये बिल्कुल सही उत्तर है। उसी तरह से पृथ्वी, तो इसमें भी बीच वाला जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है, पृथ्वी। उसी तरह से विद्यार्थी और विद्यार्थी, तो इसमें विद्यार्थी सही उत्तर है, जो ये वाला सही उत्तर है, विद्यार्थी आप लोग के सामने सही उत्तर। इस प्रकार से हम विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में देख सकते हैं जो वर्तनी संबंधी होता है सही शब्द का चयन, उसको हमें सावधानी बरतना चाहिए। उसके बाद अभी हिंदी व्याकरण समझे, बुझे और साथ में
प्रयास करें। तो मैं आज आप लोग के सामने एक जो नाउन संज्ञा के बारे में बता रहा था, संज्ञा के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे रहा हूँ। आप लोग स्क्रीन में देख रहे हैं, परिभाषा जो है वह है वह शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, अवस्था, भाव एवं विचार का बोध कराता है वह संज्ञा कहलाता है। अंग्रेजी में भी डेफिनेशन यहाँ पर दिया गया है। तो मुख्य रूप से संज्ञा जो है वो नाम है, यानी नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। तो एग्जाम्पल में देख सकते हैं राम, कबूतर, कंप्यूटर, ईमानदारी। जैसे कि राम क्या है, एक सामाजिक व्यक्ति है या प्राणी है। कबूतर भी क्या है, प्राणी है या पक्षी है। कंप्यूटर एक वस्तु है, ईमानदारी एक गुण है। इस प्रकार से सभी क्या हो गए, संज्ञा हुए। और संज्ञा के मुख्य रूप से 3 प्रकार है, उसमें से 2 समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा भी यहाँ पर ऐड किया गया है। तो यहाँ पर देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा, उसको जो अंग्रेजी में प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे किसी व्यक्ति बोलने से कोई भी स्पेसिफिक होता है, जैसे कि यहाँ पर क्या है, राम, मोहन, श्याम, और साथ में वस्तु जो है जैसे नई दिल्ली, कोलकाता, स्थान, ये सब भी व्यक्तिवाचक कहता है। जाति बोलने से पूरा, जैसे कि कलम, कुर्सी, टेबल, मोबाइल, स्कूल, अस्पताल। लड़का बोलने से संपूर्ण जाति का, और राम बोलने से एक व्यक्ति हो जाता है। उसी तरह से क्या है, समूहवाचक, समूह में समिति, दल, टीम जो होता है, झुंड इत्यादि। फिर उसी तरह से द्रव्यवाचक, द्रव्य में जैसे कि सोना, चांदी, कागज़, दाल, आटा, गेहूँ इत्यादि। उसके बाद भाववाचक में क्या है, ईमानदारी, खुशी, सच्चाई, दुख, प्यार इत्यादि। तो इस तरह से हम संज्ञा के बारे में जान सकते हैं। तो मुख्य रूप से आप याद रखिएगा, संज्ञा क्या है, नाम ही संज्ञा है, संज्ञा। उसी तरह से हम नेक्स्ट में सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण की भी चर्चा करेंगे। ये देखिए संज्ञा यहाँ पर उदाहरण में दिया गया, राजू, दिल्ली, डॉग, अंग्रेजी में भी दिया गया है, यानी जिससे किसी भी प्राणी, व्यक्ति या वस्तु के नाम को दर्शाता है वो संज्ञा कहलाता है। अभी जैसे व्यक्तियों के नाम राम, मोहन, सीता इत्यादि। दिशाओं के नाम पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। देश के नाम भारत, चीन, जापान, अमेरिका। राष्ट्रीय जातियाँ भारतीय, चीनी, जापानी। नदियों के नाम गंगा, यमुना, कावेरी। समुद्रों के नाम प्रशांत महासागर, अरब सागर इत्यादि। पर्वत के नाम अरावली, हिमालय, विंध्याचल। नगरों के नाम जयपुर, अजमेर, पटना, गुवाहाटी इत्यादि इत्यादि। समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, हिंदुस्तान टाइम्स। पुस्तकों के नाम रामचरितमानस, मेघदूत इत्यादि। फिर दिनों के नाम सोमवार, मंगलवार, बुधवार। इस तरह से ग्रह, नक्षत्रों के नाम, महीनों के नाम इत्यादि से भी हम विभिन्न संज्ञा के बारे में पता लगा सकते हैं। तो এনেকৈ আমি আজি হিন্দী বিষয়টোৰ ব্যাকৰণৰ এটা পাঠ, নাউন, যিটো আজি আমি বিশেষ্য পদ বুলি অসমীয়াত কোৱা হয়, তাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিলোঁ। সকলোৱে আশা কৰিছোঁ হিন্দী বিষয়ৰ প্ৰতি আগ্ৰহী হ'ব আৰু বিভিন্ন পৰীক্ষাত, এতিয়া আমাৰ কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয়সমূহতো হিন্দী পৰীক্ষা হয়, হিন্দী শিক্ষকৰ পোষ্ট থাকে, নৱোদয় বিদ্যালয়, লগতে আমাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বিভিন্ন অনুষ্ঠান, আই ৰিপিট, ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়া, লগতে ধৰি লওক ৰেইন ফৰেষ্ট, নিষ্ট যে কৈছিলোঁ, নিষ্টতো আছে। আৰু আমাৰ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়সমূহতো হিন্দী অফিচাৰ হওক বা হিন্দী অধিকাৰী বুলি কয়, আৰু হিন্দী টাইপিষ্টৰ বহুতো পোষ্ট খালী আছে। গতিকে আশা কৰোঁ আপোনালোকে এনেধৰণৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি ভালকৈ কৰিব, আৰু আমি যিমান পাৰোঁ সহায় কৰিম, চেষ্টা কৰি যাওক। চেষ্টা কৰিলে আমি আগুৱাই যাব পাৰিম। আমাৰ আশা আপোনালোকে এনেধৰণে প্ৰস্তুত কৰা ভিডিঅ'সমূহ চাই আৰু নিজে ঘৰত প্ৰস্তুতি কৰি আৰু অনলাইন ক্লাছ কৰি থাকিব বুলি আশা কৰিছোঁ। এইবুলি আজিৰ এই পাঠটো আজি ইমানতে সামৰিছোঁ। ধন্যবাদ। শুভৰাত্ৰি।